Hello students, good evening to each and every one of you. I hope you are doing good, enjoying your quarantine and I hope कि आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे. So this is Jason with you again and this is your English teacher. I'm going to teach you English and we are going to start with book A of your next English, class number 7. So let's get started. Today we are going to talk about the chapter number 1. The name of the chapter is The Night We Won the Boik. Here, it's in chapter number 1. The name of the chapter is The Night We Won the Boik. Boik, it's a car. It's the name of a car. That means वो रात जिसमें हमने बोइक जो गाड़ी है जो जीती. Because it's a fantasy car. It's a very big, pridey car, and it cost very high. So let's get started. First we are going to talk about author. So the name of the author or the name of the person, the narrator of this story is John Griggs. John Griggs is the person who wrote this book. Let's talk about John Griggs. John Griggs was born in 1828 and he died on 1910. Basically he was from British. He was a UK guy. Angrez, yes. He's remembered for writing 3-volume award-winning biography for the famous British statesman David Lloyd George, and he also won the award for 3-volume British newspaper or the British statesperson जो उधर के politician है उससे उनको award भी मिल चुका है because उन्होंने अलग अलग टाइप की novels लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी and उन कहानियों के कारण उनको प्राइज मिला है. He was the editor of the newspaper that his father owned and later a columnist for the Guardian for 10 years. इन्होंने न्यूज़पेपर में भी काम किया है. Later on ये Guardian नाम का एक न्यूज़पेपर है उसमें कॉलम्स भी लिखते थे एंड उसके बाद उन्होंने द टाइम्स एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें द स्पेक्टेटर नाम का एक कॉलम आता था उसमें भी कई बार उन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा है. ओके, so let's get started with our lesson. We are going to talk about this lesson. So we talked about the author. Who is the author? The name of the author is John Griggs. So let's get started with our lesson. I'm going to read the first line. Please keep your books with you. ठीक है? So that कि जो मैं पढ़ूँ आपको वो चीज़ समझ में आ जाए. It was just before the Second World War. We were the only family in New York town that didn't own a car. सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की बात है. न्यूयॉर्क में सिर्फ एक यही फैमिली थी दैट दे डजंट हैव एनी कार. आवर डेली शॉपिंग ट्रिप्स वर मेड इन डिसरप्टेबल 2-wheeled basket cart drawn by an Asian Shetland pony that my mother had named Barkis after the character in David Copperfield. So what they were saying कि जो भी ये शॉपिंग करने जाते थे ये एक घोड़े गाड़ी में बैठ के जाते थे जिसका नाम था घोड़े का बार्किस. और उस घोड़े का जो कैरेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? शेटलैंड पोनी. इनकी जो ब्रीड है उसको क्या बोलते हैं? शेटलैंड पोनी. उसका नाम क्या था उस घोड़े का? बार्किस. बोनी बार्किस वॉज एन eyesore. Every clop of his splayed hoof sounded our poverty. ठीक है, ये जो बोनी बार्किस था ये दिखने में बिल्कुल ही भद्दा था, गंदा था, अच्छा नहीं था और इसको लेके चलते थे जब हम लोग तो हमारी गरीबी इस घोड़े की वजह से हमें क्या होती थी? दिखती थी. For poor we were, my father's salary as a clerk would have maintained us in a modest plenty and had not half of it gone for the support and medical expenses of ill and indigent relatives. कि हम लोग इतने ज़्यादा गरीब थे लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग लोगों की मदद करते थे. हमारी फैमिली में जो गरीब लोग थे, जो बीमार लोग थे, ठीक है, मेरे पापा जो क्लर्क थे उनकी सैलरी इन मेरे दूसरे गरीब परिवार में जाती थी. As it was, our house was mortgaged to the hilt and some winters the grocers supplied our needs on credit. ठीक है, कभी कभार हम हमारा घर क्या करते थे? गरीबों को ठंड के समय में किराए पे दे देते थे और इसकी वजह से हमें कभी कभार क्या मिलता था? क्रेडिट पे. क्रेडिट माने उधारी पे खाना भी हमको दुकान से मिल जाता था. मदर कन्फ्रंटेड द फैमिली बाय सेइंग इफ़ यू हैव कैरेक्टर यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन हमारी मम्मी जो थी वो बहुत पॉजिटिव थी और वो क्या कहती थी
कि अगर आपके पास कैरेक्टर है, आपके पास एक अच्छा मन है, एक अच्छा कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा धन जमा कर लिया है। लिविंग ऑन लिटिल डेवलप्स इनर रिसोर्सेज एंड बिल्ड्स अ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। और इन्होंने बोला था कि अगर धीरे धीरे छोटे छोटे से अगर हम हमारे मन में अच्छाई भरें तो हम स्पिरिचुअल, ठीक है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे जीवन में आ सकती है और हमारा बैंक बैलेंस क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मतलब अच्छा बिहेव करेंगे तो धार्मिकता हमारी बहुत अच्छी होगी और हमारा जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है वो बहुत फिल हो जाएगा। माई बिटर रिटोट वॉज यू कांट बाय अ कार विथ इट, ठीक है, लेकिन मेरा हमेशा कड़वा रिस्पॉन्स क्या रहता था कि इससे आप एक कार नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो जाओगे, भगवान को खुश करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन ये अच्छे काम आपको क्या नहीं दिला सकते, कार नहीं दिला सकते। येट शी सक्सीडेड इन मेकिंग ऑस्टेरिटी बियरेबल इन ऑल अदर एक्सपेक्ट्स, ठीक है, लेकिन हमारे जो भी डेली के खर्चे थे हमारी मम्मी क्या करती थी, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करती थी। अब होम हैड चार्म, हमारा घर दिखने में बहुत ही चार्मिंग था, सुंदर था। मदर न्यू द सीक्रेट ऑफ यूजिंग अ फ्यू मीटर ऑफ ब्राइट चिन्स एंड अ लिटिल पेंट इन द राइट प्लेसेस बट द गराज स्टिल स्टेबल्ड बार्किस। लेकिन मेरी मम्मी जानती थी कि घर को कहाँ कहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर करना है, उसको थोड़ा सुंदर बनाना है, ठीक है, कलरफुल बनाना है, तो उसकी वजह से उनका जो घर था वो बहुत सुंदर दिखता था। लेकिन जो उनका गराज था जहाँ पे कौन रहता था, बार्किस रहता था, वो तो तबेला ही था, घोड़ा रहता था उसमें। Suddenly there arrived the soul igniting moment which was to consume my shame in the blaze of glory. But after some time there was a suspense happened, there was an incident happened in which the author was ashamed or the narrator was ashamed. कुछ टाइम में बाद एक ऐसा कांड हुआ या फिर ऐसा काम हुआ जिससे ऑथर जो है वो क्या हो गया, एकदम ashamed हो गया। What was it? We was going to read. For weeks a new Buick Roadmaster had stood in the window of the biggest store on the main street. Now, on the final gala night of the country fair, it was to be raffled off. अब क्या होता है, पिछले कई हफ्तों से एक शोरूम में या फिर एक दुकान में या फिर एक मेले में क्या खड़ी है, एक बुइक रोड मास्टर खड़ी है, सब कार, ठीक है, जो हमारा चैप्टर का नेम है बुइक। तो ये जो बुइक है ये कार वहाँ पे खड़ी हुई थी और मेले के आखिरी दिन क्या लगने वाला था, लकी ड्रॉ निकलने वाला था कि उस कार का विनर कौन है वो पता चल गया लकी ड्रॉ से। आफ्टर वॉचिंग द फायरवर्क्स आई स्टेड इन द शैडो ऑफ द शैडोज एट द एज ऑफ द थ्रोंग फॉर द क्लाइमैक्स, ठीक है। तो मेले के बाद जो मेले में जो पटाखे वटाखे चले उसके बाद क्या होता है कि ये जो नरेटर है या जो ऑथर है वो क्या करता है, वो सब लोगों के साथ भीड़ में खड़ा हो जाता है और क्लाइमैक्स देखने के लिए कि ये कार किसको जाती है देखने के लिए। जब लकी ड्रॉ निकलता है बहुत सारी पर्चियाँ डलती हैं, तो उसमें से एक पर्ची बाहर निकलती है, तो जो पर्ची में जिसका नाम होगा उसकी क्या हो जाएगी, कार हो जाएगी। तो जो नरेटर है वो उसको देखने के लिए खड़ा था कि वो कार किसको मिलती है। द ड्रॉइंग ऑफ द विनिंग नंबर draped in bunting on a special platform, the Buick glittered around the dozen sports light. The crowd held its breath as the mayor reaches into the glass of the bowl for the lucky ticket. जो बुइक थी वो एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी जिसपे बहुत सारे लाइट थे और बहुत सारे झंडे, कलरफुल झंडे खड़े हुए थे। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, द मेयर ऑफ द सिटी अराइव्स और अपना हाथ डाल के वो उसको बाहर निकालता है पर्ची को। Now, never in my most extravagant yearning it had occurred to me that Lady Luck would smile upon the only family in the town without a car. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना वाइल्ड नहीं सोचा हुआ कि ये कार मुझे मिल जाएगी। हम लोग भी मेले में जाते हैं, लकी ड्रॉ भरते हैं, कूपन भरते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हाँ ये मेरे को मिल जाएगा? हमने कभी भी नहीं सोचा था। तो वैसे ही ऑथर ने भी नहीं सोचा कि इसको कभी क्या मिलेगी, कार मिलेगी। But the loudspeaker boomed my father's name. By the time I had wormed my way up to the platform, the mayor had presented my father with the keys and he had driven off a miss chair. ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, वो मेयर ने जब पर्ची निकाली तो विद अ सडन लाउड स्पीकर का जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उधर, उसमें से किसका नाम आता है, ऑथर या फिर नरेटर है, उसके पापा का नाम उस माइक में आता है। और उसके पापा जाके वहाँ पे मेयर से क्या करते हैं, कीज़, गाड़ी की कीज़ कलेक्ट करते हैं और स्पीडली लोगों की खुशी, या लोग हल्ला कर रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं, इनको कार मिली है करके, ठीक है, खुश हो रहे हैं लोग भी, तो लोगों के बीच में से क्या करते हैं, ये अपनी कार लेके जाते हैं। I made it home in a record time.
The house was dark, save for the lighting of the living room. The boy stood in the driveway, glistening in the glow from the front window. From the garage, I heard a snuffle from Barkis. मैं अपने घर रिकॉर्ड टाइम में पहुंच गया. मतलब आज तक मैं अभी तक घोड़े गाड़ी में जाता था 10 मिनट लगते थे, अभी बुइक में जा रहा है तो 2 मिनट के अंदर अपने क्या कर गया, घर में पहुंच गया. जब घर में पहुंचा तो उसके घर में लिविंग रूम को छोड़ के बाकी पूरे घर में अंधेरा था. और कार कहाँ खड़ी हुई थी? बाहर रोड साइड पे खड़ी हुई थी, ड्राइववे में खड़ी हुई थी. और क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो अंदर चले जाते हैं और गराज में से जो बार्किस है, जो उनका घोड़ा है, उसकी क्या होती है, आवाज़ आती है. देयर इज अ वन वर्ड कॉल्ड स्नफल. स्नफल क्या होता है? जब हमारी नाक बहती है ना और जब हम सांस लेते हैं, तो वैसे ही ठंड में वो घोड़ा भी सांस ले रहा था और उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी. पेंटिंग फ्रॉम माई रन, आई टच द कार्स स्मूथ सरफेस, ओपन द डोर एंड गॉट इनसाइड. मैं भागता हुआ जल्दी गया और कार को दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठ गया. The luxurious interior had that wonderful new car smell. I studied the gleaming dashboard, turning my head to reveal the cushioned vista for the seat back. I saw my father's sturdy figure through the rear window. ये कार में बैठता है, कार में आगे बैठ के कार की डैशबोर्ड देखता है, फिर कार की पीछे वाली सीट में आता है, आराम से सर रख के ऐसे लेट जाता है. ठीक है, तो वो कार को पूरी तरह से स्टडी कर रहा है कि किस तरह से कार है, कितनी सुंदर कार है. तो वो पीछे का जो आगे का जो मिरर रहता है, जिसमें पीछे दिखता है रियर मिरेज इमेज, तो उसमें से क्या करता है, वो अपने पीछे से पापा को आते हुए भी देखता है. ही वॉज पेसिंग अलॉन्ग द पेमेंट, मतलब वो तेजी से चलते हुए क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं. I slammed the door and rushed over to him. Leave me alone, he snarled. जब पापा को आते हुए उन्होंने देखा तो वो क्या किया, उसने ऑथर ने वो दरवाज़ा बंद करके पापा की तरफ ज़ोर से भागा और पापा उसे क्या कहते हैं, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. If he had clubbed me over the head, I would have not been hurt. Shocked, I went into the house. इसमें बोल रखा है कि अगर मेरे पापा मेरे को अगर डंडे से भी सर पे भी मारते थे ना, तो भी मुझे इतनी चोट नहीं लगती जैसा पापा ने मुझे बोला कि दूर हो जाओ, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. तो मैं अंदर चुपचाप अपना अलग अंदर चला गया घर के अंदर. सो आई होप आप लोगों को इतना चैप्टर समझ में आया होगा. आज हम इतना सा ही वीडियो करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपका चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा. ओके, आपको बस मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो वीडियोज़ है वो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. सो ओके स्टूडेंट्स, for the next class we will meet you tomorrow. Okay, for the next videos, if you have any doubts then don't forget to comment. अपना comment करिए, sir this is the line where I did not understand, please help me to understand it. I will remake the video or I will make you understand by calling you or by WhatsApp you. ठीक है students, so better luck for the next time. Enjoy your day. Bye bye, take care.